हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पहले पढ़ाया और क्या पढ़ाया, प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज का मेरा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। देखो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, तो इट विल रिजल्ट इनटू विच साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि यूट्रस ने तो सारी प्रिपरेशन करी थी, एवरीथिंग गॉट वेस्ट, फाइन। लेकिन सेकेंड ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट इज इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, ठीक है, देन देयर विल बी अ डिफरेंट प्रोसेस। सो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ये हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज एक्चुअली फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इस प्रोसेस के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट को हैज टू कम टुगेदर। सो फॉर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट इवेंट इज व्हाट, दिस इज डायनामिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कई सारे इवेंट होते हैं। तो द फर्स्ट प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, इंसेमिनेशन। दिस इज insemination. Insemination means what? Deposition of sperm in the vaginal tract of the female. फीमेल के वेजिना में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का डिपोजिशन होना is called what is insemination. It can be done naturally and it can also be done artificially. So the first event is what? Insemination. Fine. And after insemination, understood? Insemination, that means sperm get deposit, sperm reaches at what? Vagina. Fine. This is what? Insemination. Second step is, अब sperm तो reach कर गया, what is the path of the sperm, है ना? जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हॉर्मोन्स है वो स्पर्म को क्या देता है? मोर्टेलिटी। और स्पर्म क्या करता है? हाउ डज इट मूव? व्हाट इज द पाथ ऑफ द स्पर्म आफ्टर रीचिंग द वेजिना? तो स्पर्म जो है, ये स्पर्म व्हेन इट गेट इंसेमिनेटेड फ्रॉम द वेजिना, इट मूव्स टू द cervix. From the cervix it goes to the uterus and finally reaches to the fallopian tube. In the fallopian tube, or fallopian tube के in which part this stays, it stops, that is what? Ampulla. Ampulla में the sperm settle down. Fine. The life of the sperm inside the body of a male when it is stored in epididymis is about a week. लेकिन once it comes out of the body, the life of the sperm when it after insemination is about 48 hours. कितनी इसकी लाइफ है? that is 48 hours, and this is best in function within what? 24 hours. Fine. तो ये मैंने बताया insemination. After insemination this path it follows, and where the process of fertilization occur. fertilization की process actual में कहाँ होती है? it occurs at what? ampulla, that is a swollen part of what? fallopian tube. आप पढ़ चुके हैं fallopian tube is made up of membrane, oviducal funnel, infundibulum, ampulla, isthmus, है ना? तो ampulla में आके the sperm will wait. Fine. Now what happen when the sperm reaches to the vagina? जब sperm vagina में reach करता है,
It cannot directly ये path follow करके directly fertilization नहीं कर सकता. There are certain processes that occurs in what? The sperm. The secretion of the vaginal tract removes the membrane. इसका decapacitation करती है. There is another process that is next is called what is capacitation. It is capacitation. Capacitation is what? The preparation of a sperm for fertilization. Actually what happened in the capacitation? There is a removal of membranes. इसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल की एक मेम्ब्रेन है, this membrane from the surface of sperm. Fine. Sperm was actually inside what? A semen. It was surrounded by many things. So everything has to be removed. So all this preparation, it has to be only the sperm. Fine, nothing else around it. So that process is called what is capacitation. Fine. At the same time, the fertilization will occur only if there is a simultaneous approach of ovum and the sperm. So the ovum also reaches. Ovum जो है at the next time fertilization में देखो insemination हो गया, स्पर्म ने पाथ फॉलो कर दिया, स्पर्म की एज इतनी है, स्पर्म ने प्रिपरेशन कर ली, कैपेसिटेशन हो गया, इसके जो एक्स्ट्रा आउटर सब्सटेंस था सब रिमूव हो गया. नाउ व्हाट इज अराइवल ऑफ द ओवम, है ना. तो ओवम आल्सो हैज टू रीच. ये जो है ओवम कौन से स्टेज में है अभी? सेकेंडरी. दिस इज एट विच स्टेज? दिस सेकेंडरी oocyte. किस फॉर्म में? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में. The inner lining of the fallopian tube is lined by the ciliated epithelium. So उससे move करके it also reaches to what? Ampulla. Yes, ovum भी कहाँ पर पहुँच गया? Ampulla में पहुँच गया. Fine. And you have already studied the structure of a sperm and the structure of an ovum, है ना. जब ओवम अब यहाँ पर रीच कर गया, आपको पता है कि ओवम इज सराउंडेड बाय मीन्स ऑफ व्हाट? Zona pellucida and corona radiata. Now this is what the ovum. ये इसकी perivitelline space. Now you can say this layer is what? Zona pellucida. ये zona pellucida की layer. This diagram we have already drawn, so I will not label it again and again. पहले वीडियो में आपने देखा होगा. And then it is surrounded by means of the cells, and these cells are called what is? Which cell? Corona. Together it forms corona radiata. ठीक है, ये है corona radiata, and between the corona radiata there is a cementing substance present, and this cementing substance is nothing but hyaluronic acid. ठीक है. And the sperm, when approach to this, what is going to happen? First is their arrival. ठीक है. और sperm अभी अप्रोच कर रहा है इसको. So at the same time, this is under which stage? Second meiotic cell division is not completed. This is at metaphase 2. ठीक है. Now here comes the sperm. Sperm as the sperm approach. ये sperm है. The structure of the sperm already you have studied. This portion is what? Acrosome, nucleus, and here followed by what? Proximal and distal centriole. This you have already done. Then there is a presence of what? Spiral mitochondria, and the whole cytoplasm what?
पूरा साइटोप्लाज्म जो है, this is filled in which area? The tail area. Fine. And there is a presence of which filament? Axial filament. Here is a filament and this filament is axial filament. Fine. This is a sperm. We have more concern at the moment with what? Acrosome. ये है acrosome. Acrosome is modified Golgi body. ठीक है. अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होने वाली है? There are 3 reactions that will take place over here. यहाँ पे 3 प्रोसेस होंगी. First is called that you have to learn. 3 प्रोसेस होने वाली हैं. First is called what is? Which reaction? Acrosomal reaction. First is acrosomal reaction. First is acrosomal reaction. Second is cortical reaction. And third is zona reaction. There are 3 reactions. This is acrosomal, cortical reaction, and third is zona reaction. Fine. For as the sperm approach to the ovum, there are going to be 3 reactions prior to the fertilization. और ये तीनों रिएक्शन कौन कौन सी हैं? एक्रोसोमल, कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन. एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा? एज द नेम इंडिकेट, एक्रोसोम विल रिलीज व्हाट? एंजाइम्स. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? दिस इज अ मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी. इसका काम ही सिक्रेशन है. आफ्टर दैट इट विल डिसइंटीग्रेट. अब sperm has to reach to this place. So first of all, during acrosomal reaction, the sperm will release. Sperm जो है क्या रिलीज करेगा? नंबर 1, hyaluronidase. क्या secrete करेगा? hyaluronidase. This is an enzyme which will dissolve किसको? hyaluronic acid. ये जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है, इसको हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा, सो दैट इट बिकम्स अ पाथ फॉर द स्पर्म टू एंटर. ठीक है, तो ये क्या है? इट विल डिसॉल्व. किसको डिसॉल्व करेगा? हाइलुरोनिक एसिड. एंड दिस इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर. फाइन. इस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया. सेकेंड एंजाइम ओवर हियर इज व्हाट? पहला तो आपको समझ में आ गया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. कौन सा एंजाइम? सेकेंड एंजाइम इज कोरोना पेनिट्रेटिंग. दिस इज पेनिट्रेटिंग एंजाइम. पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि स्पर्म सिर्फ ये वाले पाथ से निकल के जाएगा. देयर आर सम टाइम व्हेन द स्पर्म विल अप्रोच टू दिस प्लेस, दिस कोरोना सेल कैन आल्सो कम ऑन द वे. सो दिस आल्सो हैज टू बी डिसॉल्व. स्पर्म को अपने रास्ते से कोरोना की सेल्स को भी हटाना है, तो उसके लिए उसने कौन सा एंजाइम सिक्रीट करा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. इसको भी डिसॉल्व कर देगा. फाइन. और पहले कौन सा एंजाइम है? हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिक एसिड, जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है, उसको डिसॉल्व कर दिया. अपना रास्ता साफ करना है. सेकेंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. अब थर्ड क्या बचा हमारा? कौन सा बचा है? जोना लाइसिन. अब इसको भी तो अप्रोच करना है. सो दिस विद द स्पर्म विल रीच ओवर हियर. यहाँ पर आपका ये देखो, जोना पेनिस, इसको भी स्पर्म ने क्या कर दिया? पेनिट्रेट कर दिया. सो आपका द स्पर्म विल रीच टू विच प्लेस? दिस प्लेस. दिस इज व्हाट?
द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। फाइन, ये स्पर्म इधर पहुंच गया। थर्ड रिएक्शन मुझे, थर्ड एंजाइम मैंने को लिखना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एक्रोसिन और जोनालाइसिन। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज जोनालाइसिन एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट व्हाट इज एक्रोसिन। देखो आप तीन एंजाइम आपने पढ़े, एक्रोसोम ने तीन एंजाइम सेक्रेट करे, हाइलोनिडेज सीमेंटिंग सब्सटेंस को डिसॉल्व करा, कोरोना सेल्स को और जोना पेलिसिडा को। फाइन, दिस इज व्हाट, विच रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब क्या होता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ एग एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, देख रहे हो ना, किसकी, स्पर्म की, they fuse together and a cone like structure is formed. This is the time when what happened, this nucleus enter over here. Fine, and the moment it enters over here, जैसे ही स्पर्म ने इसको अप्रोच करा, ठीक है, ठीक उसी समय क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, स्पर्म की, और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होके एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया एंड उसने मेल के न्यूक्लियस को एनगल्फ कर दिया। और आफ्टर एनगल्फिंग, जैसे ही ये इसको एनगल्फ कर देगा, आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर, मैं यहाँ पर आपके लिए बनाऊंगी। तो जैसे ही उसने किसको, स्पर्म के न्यूक्लियस को एनगल्फ करा, तो व्हाट हैपन्स, यहाँ पर ये वाली यहाँ पे क्या होगी, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट, ये फीमेल के साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहेंगे, दे बिकम्स, और इसके अंदर से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी। यहाँ पे आफ्टर सी, दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, कौन सी रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, ये कॉर्टिकल रिएक्शन। एंड दिस मेम्ब्रेन बिकम्स व्हाट, हार्ड। एट द सेम टाइम व्हाट हैपन, द जोन ऑफ पेलिसिडा आल्सो फ्यूजेस टू दिस एंड देयर इज नो मोर एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। तो धीरे धीरे ये दूसरे स्पर्म की एंट्री को बंद कर देंगे। दिस इज हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, दिस, वहां पे क्या होगा, दिस इज अ स्लो चेक फॉर द एंट्री ऑफ व्हाट, द न्यू स्पर्म। एक स्पर्म ही एक एग को फर्टिलाइज कर सकता है, देयर इज नो पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, कॉर्टिकल रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन, जोना रिएक्शन। दिस इज कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन, जोना पेलिसिडा की रिएक्शन। दीज टू रिएक्शन दे प्रिवेंट, ये जो है ये क्या करेंगे, दे प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है। आपको ये याद करना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड। पॉलीस्पर्मी मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा, तो यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दे जस्ट फ्यूज टुगेदर एंड देयर इज, दिस लेयर बिकम्स हार्ड and there is no entry of the other sperm। और इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, कौन सी, this is cortical reaction and this is what, zona reaction। cortical इसलिए क्योंकि ये cortical granules है। चलो ये तो हमने बात करी कि how is polyspermy prevented। लेकिन जैसे ही sperm किसको टच करता है, किसको, ओवम को, ये कौन से स्टेज में था आपका, दिस वॉज अंडर विच स्टेज, कौन से स्टेज में था ये, मेटाफेज में। दिस वॉज अंडर मेटाफेज 2। तो इसमें क्या था, मेटाफेज
प्रमोटिंग फैक्टर, ये जो मेटाफेज जो है ये इमीडिएटली इट विल कन्वर्ट इनटू विच फेज, एनाफेज। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो है ये एनाफेज में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा एंड नाउ यू विल हैव व्हाट द, ये देखो एनाफेज में कन्वर्ट हो गया एंड ड्यूरिंग एनाफेज यू ऑल अंडरस्टैंड डिप्लॉइडी, ये क्रोमोसोम क्या है, ये मियोसिस 2 है तो डीएनए क्या है, दे आर on to moving toward the two different pole, and this is the right time, this is the right time, again I am telling you, यही सही समय है किसके लिए, for the chromosome of the sperm to does pairing, ये pairing हो गई, this is fertilization, है ना। देखो why the ovum does not complete its division, मैंने पहले भी बताया था कि अगर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो एनाफेज बहुत छोटी फेज है, टेलोफेज बन जाएगी, ठीक है। और टेलोफेज बनने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, और एक बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो स्पर्म के न्यूक्लियस, स्पर्म के क्रोमोसोम एंटर नहीं कर पाएंगे, तो ये कौन से स्टेज में रहता है, मेटाफेज 2 में। तो जैसे स्पर्म ने एंटर करा तो मेटाफेज किस में कन्वर्ट होती है, एनाफेज में। अब एनाफेज में जब ये ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो स्पर्म के क्रोमोसोम, स्पर्म के डीएनए आप कह सकते हो, दे डज पेयरिंग एंड दिस इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, हम इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एम्फीमिक्सिस, ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, this is now here if you see you will have one zygote और एक polar body, this polar body will disintegrate, ये जो है आपकी एक polar body बनेगी और ये polar body disintegrate कर जाएगी, fine, and this structure form is nothing but zygote हमारा बन गया, which is still surrounded by which layer, जोना पेलिसोडा, ये वाली इसकी जो लेयर है दिस इज जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, ये कौन सी लेयर है, जोना पेल्यूसिडा, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड व्हाट इज, दिस इज एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ गैमेट, नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या है हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट, फाइन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनकैरियन, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, सिनकैरियन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड व्हाट इज सिनकैरियन, सिन मीन्स व्हाट, फ्यूजन, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक्चुअली कौन पेयरिंग कर रहा है, nuclear material, fine, and this is the time when the sex of an offspring is decided, है ना, sex determination हमने पढ़ लिया है, there is a myth कि you do this then you will have a female fetus, you do this you will have a male fetus, no, this is totally a matter of what, chance, and this is the time there is a process of sex determination that you understand, because female always give only one kind of chromosome to both daughter and son, fine, इस समय sex determination भी होता है, this is fertilization, अब ये zygote बन गया, zygote कहाँ है, ampulla of fallopian tube, अब इस zygote का क्या होगा, इसको समझने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक लाइक बटन, थैंक यू।